तो सिलॉजिज्म में बेसिकली प्रोपोजिशंस होते हैं और इससे हमें कंक्लूजन निकालना होता है। ये प्रोपोजिशन 4 तरीके के होते हैं। यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, particular positive and particular negative. So we have 4 types of proposition: universal positive, universal negative, particular positive, and particular negative. Universal positive is also known in Hindi as what do we say this in Hindi? This is like samanya. Universal means samanya, and this is vishesh. Samanya and vishesh. Okay. Just for the convenience, we identify universal positive with the letter A and universal negative with E, particular positive with I, and particular negative with O. This is just an assumption. This is nothing to do with the it will not, if you assume anything else, it will not affect your answers. This is like just an assumption. So the basic thing is that how to solve questions. So there are some points that need to be kept in mind before solving preposition. First point is that your prepositions should be aligned. What does align means? See, whenever a preposition is written, okay, I have not told you what exactly is universal positive. So let us first discuss what kind of preposition fall into these categories. So first of all, we have universal positive. So the preposition that fall in these categories are of the type all girls are disciplined. So here you can see the preposition starting with the word all. This is universal positive. Okay, then there are other types of prepositions also which can be taken as a preposition. So this is a positive statement because there is not a usage, there is no usage of not or anything that is negating the statement. So this is a positive statement. Similarly, if the preposition starts with each, every, any, okay, so this is also a universal positive proposition. Next we have, if we have a positive sentence for a particular person, with particular person,
what is the example? Ram is a boy. This is a positive sentence. Where Ram is the subject and boy is the predicate. Each sentence has two parts. One is subject. So if we look at this, the first sentence, girls is subject. Subject is what? Anything we are talking about is subject, and the its attributes are predicate. Attribute मतलब उसकी विशेषताएं. Predicate. Predicate क्या होता है? Predicate tells us about their विशेषताएं, और सब्जेक्ट तो आप समझ ही रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं. सो ये हो गया ए टाइप. तो इसको हम लोग ए लिख देते हैं. हमने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया. अभी आगे बताएंगे क्यों आइडेंटिफाई किया, उसका क्या मतलब है. यूनिवर्सल नेगेटिव. अब ये यूनिवर्सल नेगेटिव क्या बात है भाई? तो यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब होता है, या वो यूनिवर्सली अप्लाइड होगा और वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा. जैसे नो बॉय इज अ गर्ल. नेगेटिव पार्ट क्या है? नो. यूनिवर्सल है मतलब इट अप्लाइज टू ऑल. ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सल नेगेटिव. इसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस नो वन, नन, नॉट अ सिंगल से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस. ठीक. इसके अलावा क्या होता है? कोई एक्सेप्शन की बात हो रही हो, एक्सेप्शन की बात हो रही है तो वो भी यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा. लेट नो स्टूडेंट एक्सेप्ट सलीम has done his homework. तो ये भी हो गया आपका क्या? यूनिवर्सल नेगेटिव. फिर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, एनी इंटरोगेटिव सेंटेंस. ये बस मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा ये सारी चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन बस ये कभी आ भी सकता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करना है. विच इज़ यूज्ड एज an assertion. अब assertion की तरह यूज हो रहा है. इज देयर. एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल है इज देयर एनीवन in the class who doesn't know English. So this is like universal negative sentence. These sentences are identified with the letter E. Then comes particular positive. What is particular positive? Particular positive sentences will be positive in sense and will apply to some, not all. Like, so the sentences basically starts with the word some. Some से शुरू होते हैं. जैसे some boys are musicians. तो वहाँ देखिए all या no से शुरू हो रहा था यूनिवर्सल, और पर्टिकुलर मतलब some से शुरू होता है. तो क्लियर हो रहा होगा कि ये these sentences are only applied to some
or some boys or some a group of person or group of anything, but it does not apply to everyone. So there are some words that also make a sentence particular positive. जैसे कि अगर most से शुरू हो रहा है, a few आ रहा है, जनरली आ रहा है, ये सारे सेंटेंस मतलब जो आपको बता रहे हैं कि जो सबके लिए इक्वली अप्लाई नहीं होता, वो भी क्या आते हैं, ऑलमोस्ट है, फ्रीक्वेंटली है, मतलब ये सबके लिए अप्लाई नहीं है. These words are used to identify some situations, not all situations. ठीक है. कोई चीज़ डेफिनेट ना हो, मतलब जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शन डेफिनेट था, लेकिन इसमें डेफिनेट नहीं होगा एक्सेप्शन. डेफिनेट एक्सेप्शन मतलब जैसे इनडेफिनेट एक्सेप्शन बता रहा हूँ. इनडेफिनेट एक्सेप्शंस कैसे होते हैं, जैसे सेल्डम का यूज़ कर रही है, सेल्डम पीपल आर हार्ड वर्किंग. ठीक है. So this is like example. Here we can also take example often people talk with each other. That is also an example of particular positive. It is identified with the letter I. Okay. So next we have particular negative. These sentences also starts with words some. Here we can write the words, these sentences. Okay, I have already enclosed that in a rectangle, so I will do that here also. So what exactly these propositions are, like some flowers are not fruits. So not makes this sentence negative and some make this sentence particular. ठीक है. जैसे some fans are not coolers, ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा. तो इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा और कौन से चीज़ आएंगे, तो इसमें आएगा नेगेटिव प्रोपोजिशन. नेगेटिव प्रोपोजिशन मतलब नेगेटिव सेंटेंस एंड स्टार्टिंग विथ all, every, any, each. So this is like O type. Okay. Similarly इसमें अगर मोस्ट से नेगेटिव प्रोपोजिशन होगा, स्टार्टिंग विथ मोस्ट. Mostly, a few, generally, almost. So this is like negative sentences starting with these words are classified as particular negative. Similarly कुछ words होते जैसे few, seldom,
उससे भी स्टार्ट होने वाले वर्ड यही होते हैं। अब इसमें इनडेफिनिट एक्सेप्शन होगा नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे नो स्टूडेंट एक्सेप्ट अ फ्यू हैव पास्ड, तो ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से। ओ हो गया है ए ई आई ओ, जनरली वॉवल्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो 4 ही प्रपोजिशन होते हैं, तो ए ई आई ओ हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यही बेसिक है कि कैसे सल्यूशन करना है इसका। तो पहला स्टेप है स्टेप्स टू सॉल्व। Now we are going to see how to solve syllogisms. So there are certain steps that we need to follow. What are those steps? The first step in the direction of solving the propositions or the syllogisms is alignment. What is this alignment? Alignment means that suppose a proposition is written as all red are green and some green are yellow. Okay, let me take the color so that you can correlate with it. Some all red are green and some green are yellow. Now here we can see the what does alignment means. Okay, there is a spelling mistake here. There is also n will also be there. So alignment means कि जो पहले वाले का ये सेंटेंस 1 है और ये सेंटेंस 2 है, तो सेंटेंस 1 का जो प्रेडिकेट होगा वो सेंटेंस 1 का सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सेंटेंस 1 का प्रेडिकेट ग्रीन है, तो सेंटेंस 2 का जो सब्जेक्ट होगा वो भी ग्रीन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है? अगर ऐसा है तो ठीक है, और नहीं है तो इफ predicate of first sentence is not equal to subject of second. अगर पहले का predicate दूसरे के सब्जेक्ट से नहीं मैच कर रहा है तो हमें क्या करना है? In that situation we have to apply transformation. अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? ट्रांसफॉर्मेशन है कि कैसे हम लोग एक जो सेंटेंस है उससे एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप में कैसे चेंज करें। तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? जो ए टाइप के सेंटेंस हैं वो आई टाइप में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसे लिखते हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। और जो ई टाइप के सब्सटेंस है सेंटेंस हैं वो ई टाइप में ही चेंज होंगे, और जो आई टाइप के सब सेंटेंस है वो आई टाइप में ही चेंज होंगे, और ओ टाइप किसी में नहीं चेंज होता है।
नहीं, कैनॉट बी चेंज लिख देते हैं, ठीक, कैनॉट बी चेंज। जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें इन सब का मतलब क्या है। जैसे लिखा है ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। अब अगर हम लोग ये देखें फर्स्ट वाला, तो ए जो है आई टाइप में होता है। आई टाइप का प्रोपोजिशन क्या होता है? ए टाइप का प्रोपोजिशन होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, और आई टाइप का होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव। आई होप आई एम क्लियर। तो होता क्या है इसमें, जब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं तो जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है इसे इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब जो एनिमल होगा वो बर्ड की जगह आ जाएगा, जो बर्ड होगी वो एनिमल की जगह चली जाएगी, और ऑल जो है वो सम में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सम एनिमल्स आर बर्ड्स। क्लियर है? अभी इसका देखते हैं, इसका आगे क्वेश्चंस में आएगा तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस सम ग्रीन और येलो की जगह ये होता है सम येलो और ग्रीन। तो जो हमारी पहली कंडीशन है कि प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड, वो फुलफिल नहीं होती इस केस में, और फुलफिल नहीं होती तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको इससे रब कर देते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये, तो क्या हो गया, ये हो गया ए इज़ कन्वर्टेड इनटू आई, ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा इसी तरीके से सेकंड जब करेंगे ई जो है वो ई ही टाइप में चेंज होगा। जैसे ई क्या होगा, नो बॉल इज बैट। तो ये एक ई टाइप सेंटेंस है, तो इसे इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज़, बैट जो है बॉल की जगह जाएगा, बॉल जो है बैट की जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नो बैट इज बॉल। ये भी हो गया ई। ठीक है, अब थर्ड टाइप में क्या होता है? थर्ड टाइप में होता है जो आई जो है वो आई में ही कन्वर्ट होगा। अब आई वाला कौन सा था प्रोपोजिशन? आई वाला प्रोपोजिशन होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव, मतलब सम बॉयज आर म्यूजिशियंस। ये एक आई टाइप का प्रोपोजिशन है, तो इसे जब इंटरचेंज करेंगे तो म्यूजिशियन जो है बॉय की जगह आ जाएगा, बॉय म्यूजिशियन की जगह आ जाएगा, और सम जो है सम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा सम म्यूजिशियंस आर बॉयज। तो ये पैरा रूल हो गया कि पहले हम लोगों को क्या करना है, अलाइनमेंट करना है सेंटेंस का। So once the sentence get aligned, then we have to draw conclusions from the two propositions. और जो सेकंड कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है आप अलाइन कर लीजिए, फिर एक टेबल होता है उसे फॉलो करके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कंक्लूजन। अब देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है। स्टेटमेंट 1 अगर ए है, ए टाइप है, स्टेटमेंट 2 भी ए टाइप है, मतलब दोनों ऑल वाले हैं, तो कंक्लूजन भी ए टाइप होगा। अगर स्टेटमेंट 1 ए है और स्टेटमेंट 2 ई है तो कंक्लूजन ई होगा। अगर स्टेटमेंट 1 ई है, स्टेटमेंट 2 ए है तो कंक्लूजन होगा ओ स्टार, और स्टेटमेंट 1 ई है, स्टेटमेंट 2 आई है
तो भी कंक्लूजन होगा ओ स्टार। तो मतलब जो ई टाइप के जो प्रोपोजिशन होंगे उसका कंक्लूजन ओ स्टार होगा। अभी ओ स्टार क्या होता है ये डिस्कस करेंगे हम लोग। आई स्टेटमेंट वन आई टाइप का है, मतलब सम पर्टिकुलर पॉजिटिव है और ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन होगा आई। अगर स्टेटमेंट वन आई है और स्टेटमेंट टू ई है तो कंक्लूजन होगा ओ। बस यही कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें कंक्लूजन आएगा। अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट टू में से ओ आता है तो उनका कोई कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ओ स्टार क्या होता है? ओ स्टार होता है कि जो ओरिजिनल कंक्लूजन आना चाहिए उसका हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर देते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। जैसे अब देखिए क्वेश्चंस है, ऑल बैग्स आर टॉयज एंड ऑल टॉयज आर कीज। ठीक है, तो ये जो टॉयज है ये पहले का क्या है, पहले हम लोग को चेक करना है अलाइंड है कि नहीं सेंटेंस। तो सेंटेंस तो अलाइंड है क्योंकि पहले का सब्जेक्ट जो है, पहले का जो प्रेडिकेट है वो दूसरे का सब्जेक्ट है, तो अलाइंड है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप है, दोनों ए टाइप है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगी, एक्चुअली ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो कंक्लूजन क्या बनेगी, ऑल बैग्स आर कीज। क्योंकि ये दोनों ए टाइप सेंटेंस है तो ए टाइप सेंटेंस की कंक्लूजन भी ए टाइप होती है, इसलिए ये ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट जैसे अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2, ऑल टीचर्स आर राइटर्स। फिर ऑल टीचर्स आर स्पीकर्स। ठीक है, तो ये भी ऑल है तो ये ए टाइप है, ये भी ए टाइप। लेकिन अब पहली चीज़ हम लोग देखेंगे अलाइंड है कि नहीं। अलाइनमेंट मतलब पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट क्या बराबर है, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहली चीज़ हमने अलाइनमेंट देखी, अलाइनमेंट ही नहीं था, तो अलाइनमेंट ही नहीं था, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये पहला है, ये सेकंड है सेंटेंस, तो चलिए सेकंड सेंटेंस को करें, नहीं फर्स्ट सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस ए टाइप है, तो ये होगा किसमें, ये होगा, देखते हैं यहाँ पे लिखा था हमने आई टाइप में होगा। ठीक है, तो जैसे लिखा है, तो अब ऑल टीचर्स आर राइटर्स है, ये तो ए टाइप है। अब ये आई टाइप में कैसे होगा, इनका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग को पलटना है। तो राइटर्स जो है टीचर्स की जगह आ जाएगा, टीचर्स राइटर्स की जगह चला जाएगा और ऑल हो जाएगा सम। तो क्या होगा, सम राइटर्स आर टीचर्स। ठीक है, तो सेकंड हमारे क्या आ गया, ये मैंने अलाइन कर दिया, सेंटेंसेस अलाइन हो गए। अब देखिए हम लोग का जो फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था,
हम लोग का फर्स्ट सेंटेंस था ऑल टीचर्स आर राइटर्स, तो हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया है, सम राइटर्स आर टीचर्स, अलाइन करके सम राइटर्स आर टीचर्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, सेकंड है ऑल टीचर्स आर स्पीकर्स, तो यहाँ पे ऑल टीचर्स और स्पीकर्स हो गया। अब देखिए पहले का जो प्रेडिकेट है और दूसरे का सब्जेक्ट सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है, ये आई टाइप है प्रपोजिशन, और ये क्या है, ये ए टाइप है। तो आई और ए का क्या होता है, आई और ए देखेंगे, आई ए का प्रपोजिशन होता है आई, तो इसका कंक्लूजन क्या आएगा, इसका कंक्लूजन आएगा सम राइटर्स आर स्पीकर्स। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सम चॉकलेट्स आर स्क्वायर, और दूसरा ऑल चॉकलेट्स आर कैंडीज। अब इसमें क्या करें, पहली चीज अलाइनमेंट चेक करते हैं। अलाइनमेंट नहीं, क्योंकि दिस और दिस ये डिफरेंट है, मतलब पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे लाल, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फट से हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट वाले में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, आई टाइप का है। आई टाइप किस में चेंज होता है, आई टाइप में देखिए आई में ही चेंज होता है, आई टाइप जो है वो आई में चेंज होता है। तो आई टाइप आई में चेंज होगा, मतलब सम चॉकलेट्स आर स्क्वायर्स है, ये सेंटेंस है ओरिजिनल। ये चेंज होके क्या हो जाएगा, सम स्क्वायर्स आर चॉकलेट्स। अब इसको हम लोग ऊपर रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सम स्क्वायर्स आर चॉकलेट्स, और जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, जो वो ऑलरेडी था, ऑल चॉकलेट्स आर कैंडीज। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि इसका जो पहले वाले का प्रेडिकेट दूसरे वाले का सब्जेक्ट मैच कर गया, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ये आई है और ए है, तो आई प्लस ए जो होता है वो आई ही होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा सम स्क्वायर्स आर कैंडीज। तो अगर आपको 6 फॉर्मूले याद है तो आप कोई भी सिलॉजिज्म सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक ओ स्टार वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए ओ स्टार टाइप वाली देख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
all lights are bulbs. And no tubes are lights. कभी कभी ऐसा होता है, अब देखिए सेकंड सेंटेंस में और फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, अगर हम सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट बना दें तो हमारा जो प्रेडिकेट होगा वो दूसरे का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं हर बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, कई बार रीअरेंज कर लिया जाता है। तो हम लोग लिख देते हैं नो ट्यूब्स आर लाइट्स, ये पहला हो जाएगा। एंड ऑल लाइट्स आर बल्ब, ये दूसरा हो जाएगा। ये पहला है, ये दूसरा है। तो पहला वाला अगर किस टाइप का है, ये ई टाइप का है, पहला वाला ई टाइप का है और दूसरा वाला ए टाइप का है। तो इसका कंक्लूजन क्या आता है, इसका कंक्लूजन होता है ओ स्टार। ठीक है, ओ स्टार का क्या मतलब होता है अभी देखते हैं। ये लाइट्स है, ये लाइट्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। होना कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, नो ट्यूब्स आर कंक्लूजन नो ट्यूब्स नहीं होगा, कंक्लूजन होगा ओ स्टार, मतलब सम नॉट वाला होगा। तो इसमें हम लोग कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, कंक्लूजन होना चाहिए था सम ट्यूब्स आर नॉट बल्ब्स। लेकिन होता क्या है, होता ये है सम बल्ब्स आर नॉट ट्यूब्स। तो ये है ओ स्टार टाइप, मतलब ओ का उल्टा। तो ये कंक्लूजन नहीं है, इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है। तो ओ स्टार क्लियर हो गया। अगर एक पहला वाला सेंटेंस ई टाइप का है, दूसरा वाला सेंटेंस ए टाइप का है, तो ये है हमारी टेबल। पहला वाला सेंटेंस ई टाइप का है, दूसरा वाला सेंटेंस ओ टाइप का है, तो हमारे पास थर्ड वाला जो रूल है वो लगेगा और ये बनेगा क्या, ओ स्टार। सिमिलरली फोर्थ वाले में भी अगर आई टाइप का आ जाए तो वो भी ओ स्टार बनेगा। चलिए अब आई वाला भी कर लेते हैं। आई वाला क्या है, सम रेड आर कैप्स, ओके, और नो पेन्स आर रेड। ठीक, तो इसमें फिर दिख रहा है कि जो पहले वाले सेकंड वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो प्रेडिकेट है वो पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेंगे, हम लोग पहले सेकंड वाला लिख लेंगे, इसको मतलब फर्स्ट बना देंगे। क्या नो पेन्स आर रेड हो गया, और यहाँ लिख देंगे सम रेड्स आर कैप्स। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट बन चुका है। अब पहला वाला जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, अगर देखा जाए तो ये ई टाइप का सेंटेंस है, और दूसरा वाला आई टाइप का सेंटेंस है, और ई प्लस आई का कंक्लूजन होता है ओ स्टार। ठीक है, तो कंक्लूजन होना चाहिए था नो नहीं, कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, सम पेन्स आर नॉट कैप्स।
लेकिन ये क्या, ये तो ओ टाइप है, इसको ओ स्टार होना है। तो ओ स्टार होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम कैप्स आर नॉट पेन्स। तो इसका कंक्लूजन ये ना हो के ये होगा। तो आई होप ओ स्टार क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में लगभग आते हैं, चाहे वो पीसीएस हो या बैंक हो या एसएससी हो, आते हैं। और ये बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक, अगर इसका हम लोग समझ लें कि क्या इसका प्रोसीजर है, तो ये कभी गलत होने वाली चीज़ नहीं है, ये पक्के मार्क्स होते हैं। तो क्लियर है। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जैसा एग्ज़ाम में हमें दिखता है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन दिखते हैं, हमें स्टेटमेंट्स लिखा होता है ऐसे। स्टेटमेंट्स कैसे लिखे हैं, जैसे लिखा है ऑल नॉवेल्स आर बुक्स, और दूसरा दिया है ऑल बुक्स आर रिटन, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर उस क्वेश्चन दिया रहता है, कंक्लूजन्स दी रहती हैं, उसमें से चूज़ करना रहता है कौन सा है कौन सा नहीं है। कंक्लूजन क्या है, जैसे ऑल नॉवेल्स आर रिटन, ये पहली कंक्लूजन है। दूसरी कंक्लूजन क्या है, सम रिटन आर नॉवेल्स। ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सी कंक्लूजन है, वन है या दोनों है या एक है या दो है, इस तरीके से, या कोई भी नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे देख लेते हैं। जैसे ऑल नॉवेल्स आर बुक्स है एंड ऑल बुक्स आर रिटन है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, ऑल नॉवेल्स आर बुक्स एंड ऑल बुक्स आर रिटन। अब बुक्स पहले का जो प्रेडिकेट है और दूसरे का जो सब्जेक्ट है सेम है, दोनों ए टाइप का है। टेबल याद होनी चाहिए, ए प्लस ए जो होता है कंक्लूजन ए आता है, तो ए टाइप का ही सेंटेंस हमें बनेगा। तो क्या आएगा, ऑल नॉवेल्स आर रिटन। तो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो तो फॉलो हो रहा है। अब एक स्टेप फर्दर हम लोग को जाना होता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो स्टेप फर्दर क्या है, एक बार इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देख लिया जाता है कि क्या सेकंड कंक्लूजन भी आ रहा है। तो इसे जब ट्रांसफॉर्म करेंगे आप, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, ए टाइप है, आई टाइप में होगा तो सम रिटन आर नॉवेल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आई टाइप बन जाएगा। तो इस देखिए दोनों ही बोथ कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। तो ये तरीका है बेसिकली सॉल्व करने का। तो पहले हम लोग देखते हैं, तो स्टेप्स हम लोग एक बार लिख लेते हैं एक लाइन से। पहली चीज़ क्या है, पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि सेंटेंसेस को रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज करने से अगर पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट बन जाता है तो ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है
तो क्या करें, सेकंड करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म कर लिया ताकि पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट बन जाए। अगर ऐसा हो गया, फिर हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस, किस किस टाइप के सेंटेंसेस हैं। फिर हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, मान लीजिए फिर से मैं बना देता हूँ सेंटेंस, वो जो कंक्लूजन टेबल थी। कंक्लूजन टेबल क्या थी, अगर पहला ए है दूसरा ए है तो कंक्लूजन भी ए होगा। पहला ए है और दूसरा अगर ई है तो कंक्लूजन भी ई होगा। अगर पहला ई है दूसरा ए है तो कंक्लूजन ओ स्टार होगा। अगर पहला ए है दूसरा आई है तो कंक्लूजन ओ स्टार होगा। अगर पहला आई है दूसरा ए है तो कंक्लूजन आई होगा। और पहला आई है और दूसरा ई है तो कंक्लूजन ओ होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए है तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन है। इसके पास ये ए के साथ आ सकता है, ए ई के साथ आ सकता है, ए आई के साथ आ सकता है और ए ओ के साथ आ सकता है। तो जब ए के साथ आएगा तो इसका कंक्लूजन ए आएगा, जब ई के साथ आएगा तो इसका कंक्लूजन ई आएगा, आई के साथ इसका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा और ओ के साथ भी इसका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। सिमिलरली ई को देखें, ई के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो वो ए के साथ आ जाए या वो ई के साथ आ जाए या आई के साथ आ जाए या ओ के साथ आ जाए। तो ए के साथ आएगा तो इसका कंक्लूजन ओ स्टार होगा। ई का ई के साथ कोई कंक्लूजन नहीं है, ई का आई के साथ कंक्लूजन ओ स्टार होगा और ई का ओ के साथ कोई कंक्लूजन नहीं है। अब देखते हैं आई के साथ। आई के साथ क्या ऑप्शन है, या तो वो ए के साथ आ जाए या ई के साथ आ जाए या आई के साथ हो जाए या ओ के साथ हो जाए। तो आई ए के साथ आएगा तो उसका कंक्लूजन आई आएगा, आई ई के साथ आएगा तो उसका कंक्लूजन ओ आएगा और आई का कोई कंक्लूजन नहीं है और आई ओ का भी कोई कंक्लूजन नहीं है। तो इस तरीके से भी इसको समझा सकते हैं। बस ए ही ऐसा प्रपोजिशन होता है जो अगर दोनों सेंटेंसेस अगर ए टाइप के हों तो उनका कंक्लूजन ए टाइप का आता है, नहीं तो कोई और टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनका खुद के टाइप के सेंटेंस के साथ कोई कंक्लूजन नहीं आता है। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है, वो करते करते याद हो जाएगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अब क्या है, अब एक जो एग्ज़ाम से सबसे ज़्यादा है तो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये कंक्लूजन के बाद क्या करेंगे, ट्राई रीअरेंजमेंट अगेन। रीअरेंजमेंट ऑफ व्हाट, रीअरेंजमेंट ऑफ कंक्लूजन। जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया उसको रीअरेंज करके देख लीजिए। किस लिए, टू सी इफ एनी conclusion given is satisfied। देखिए कोई कंक्लूजन अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस तरीके से तो एक बार लास्ट में कंक्लूजन भी ड्रॉ कर लेना चाहिए, मतलब रीअरेंज कर लेना चाहिए कंक्लूजन को। तो ये तरीका है। ट्रांसफॉर्मेशन का भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो ए टाइप का है वो आई टाइप में होगा, जो ई टाइप का है वो ई टाइप में ही होगा और जो आई टाइप का है वो आई टाइप में होगा और ओ का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गए स्टेप्स, क्लियर है। अब
एक जो चीज़ बहुत ऑफन पूछी जाती है एग्ज़ाम में वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं? इसका जैसे क्वेश्चन है, जैसे कंक्लूजन निकला हुआ है, क्या कंक्लूजन आ जाए, सम बस आर ट्रक्स और सम बस आर नॉट ट्रक्स, सम बसेस आर नॉट ट्रक्स। अब ये दो सेंटेंस आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो ट्रक होगा या तो नहीं होगा। तो इन तरीके की इन दो चीज़ों के पेयर को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्यों? बोथ सेंटेंसेस आर contradictory, therefore complementary। सबसे बड़ा क्रूशियल चीज़ ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेस। अब इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा इसका स्टेप है। ठीक, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो आइडेंटिफाई जिसमें गलतियाँ होती हैं, तो आइडेंटिफाई ऐसे करना है। पहली चीज़ आप क्या देखेंगे कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। तो पहली चीज़ क्या है, पहला पॉइंट है, पहला कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंसेस आर सेम। इसको एंड बना देते हैं, नहीं तो और समझ में। सेंटेंसेस आर सेम, दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है जो उसमें नहीं था वो इसमें आ जाएगा। जैसे आई प्लस ओ टाइप का हो, ठीक है, या ए प्लस ओ टाइप का हो, या आई प्लस ई टाइप का हो, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम लोग देख सकते हैं कि ओ टाइप के साथ जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में आएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ए आई प्लस ओ का कोई कंक्लूजन नहीं था, ए प्लस ओ का भी कोई कंक्लूजन नहीं था, और आई प्लस ई का तो कंक्लूजन था, तो वो भी ओ आ जाता है, इसलिए वो उसको भी हम लोग मान लेते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है, सम बर्ड्स आर स्वान एंड सम बर्ड्स आर नॉट स्वान। इसमें क्या है, इसमें दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो इसमें जो आंसर आता है वो आता है नो कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से एक ही सही हो सकता है, या तो स्वॉन्स होंगे या तो नहीं होंगे। तो इसका आंसर होता है, इसका आंसर यूजली नो कंक्लूजन आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे कोई क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है नो रूम्स आर हाउसेस नो रूम्स आर हाउसेस, ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है सम हाउसेस आर रूम्स, ठीक है। नो रूम्स आर हाउसेस लिखे हैं मैंने यहाँ पे, नो रूम्स आर स्टोन्स लिखे हैं, ठीक है। और कंक्लूजन हमें दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिए सम हाउसेस आर stones and some houses are not stones, ये दो कंक्लूजन दी हुई है। तो सबसे पहले वही चीज़ फॉलो करना है, हमें फॉलो ये करना है कि जो पहले का जो प्रेडिकेट हो वो दूसरे का सब्जेक्ट बने। तो हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब पहले सम हाउसेस आर रूम्स लिख लेते हैं और दूसरा नो रूम्स आर स्टोन्स लिख लेते हैं, ठीक। अब ये आई टाइप का है, ये ई टाइप का है, तो इसका क्या आएगा कंक्लूजन, ये रूम्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, आई और ई टाइप में क्या होता है, ओ बनता है कंक्लूजन, मतलब सम हाउसेस आर स्टोन्स, ठीक है। सम हाउसेस आर स्टोन्स, ये क्या है, ओ टाइप का है। अब ये कंक्लूजन जो इसमें हम लोग देखें आर नॉट स्टोन्स होगा क्योंकि ओ टाइप का है, तो कंक्लूजन 2 ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन 2 फॉलो होगा, बस इससे क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो 3 स्टेप थे, तो 3 स्टेप हमने कर लिया। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, एक स्टेप और होता है। इसका एक स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक, तो देखिए इसमें कंक्लूजन में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लग रहे थे लेकिन है नहीं, तो इसलिए ये इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं सम पोइट्स आर टीचर्स, क्वेश्चन है सम पोइट्स आर टीचर्स, और दूसरा है सम टीचर्स आर मॉन्क्स, ठीक है। ये हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन्स में क्या क्या आएंगे, कंक्लूजन्स इसमें दी है सम पोइट्स आर सेंट्स, सेंट्स क्या है,
some poets are monks and some poets are not monks. Some poets are monks and some poets are not monks. ये हो गया, ये कंक्लूजन दी हुई है. अब हमें देखना है क्या, अब हम लोग वही सारी चीज़ें करेंगे जो करते आ रहे हैं. पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ हम लोग रीअरेंज करके देखेंगे. रीअरेंज करना पड़ेगा कि नहीं ये देखते हैं. रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो पहले का प्रेडिकेट है वो दूसरे का सब्जेक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सम पोइट्स आर टीचर्स, ये टीचर्स इसका प्रेडिकेट है और ये सेकंड वाले का सब्जेक्ट है. सम टीचर्स आर मॉन्क्स. ठीक, रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं. सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ये भी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी अलाइंड है. ठीक है, रीअरेंज करके देख रहे हैं और फिर जैसे अलाइनमेंट रीअरेंज कर लिए, ट्रांसफॉर्म किए. ठीक है, ये दोनों स्टेप क्या है, ये दोनों स्टेप अलाइनमेंट के स्टेप हैं जो हम लोगों ने पहले सीखा था. तो अलाइनमेंट ज़रूरी नहीं. थर्ड आता है, देखते हैं कौन कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ करना. थर्ड चीज़, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप का सेंटेंस है. तो पहला सेंटेंस आई टाइप का है, दूसरा सेंटेंस भी आई टाइप का है. अब आई प्लस आई का कंक्लूजन नहीं आता, नो कंक्लूजन. ठीक है, अब फोर्थ चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है कि नहीं, क्योंकि कंक्लूजन नहीं आ रहा है. ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कैसे चेक करेंगे. अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना है. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे चेक करेंगे. द कंक्लूजन गिवन आर इन द फॉर्म ऑफ सम एंड सम नॉट. तो या तो पहला होगा या दूसरा होगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, सम और सम नॉट के फॉर्म में therefore either one or two follows. Either conclusion one or two follows. तो या तो पहला वाला सही होगा या तो दूसरा वाला सही होगा. तो समझ में आ रहा है, जब सारे स्टेप्स हम लोग ख़त्म कर लें फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं आए, तभी हम लोग को चेक करना है क्या कि कौन सा फॉलो हो रहा है. ठीक, जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप में आता है, जैसे उसमें लिखा रहेगा आंसर्स कैसे होते हैं. आंसर्स होते हैं ए. इफ ओनली वन फॉलोज. बी, इफ ओनली टू फॉलोज. ये ऑप्शन बता रहे हैं. सी, इफ आइदर वन और टू फॉलोज. और डी, if neither
1 or 2 follows. Or E, if both 1 and 2 follow. ये 5 ऑप्शन होते हैं, इन्हीं में से हमें लगाना होता है। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सम T R G and all P R T, ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं। कंक्लूजन्स क्या दिए? कंक्लूजन दी है सम P R G and sum G R P। तो इनको अब देखिए वही उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि अलाइन है कि नहीं। तो स्टेटमेंट्स अलाइन नहीं है, ठीक है। तो अलाइन नहीं है तो क्या करेंगे? अलाइन करेंगे। अलाइनमेंट का तरीका मतलब या तो रीअरेंजमेंट कर लेंगे या तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। तो पहले रीअरेंज करके देख लेते हैं। ऑल P R T, इसको पहला मान लें, एंड सम T R G। अब ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट सेम है। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट सेम हो गया, मतलब ये अलाइंड हो गए। अब अलाइंड होने के बाद ये अब देखना है कि कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करें। तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए ये A टाइप का है और ये I टाइप का है, ठीक है। A प्लस I का क्या कंक्लूजन होता है? A प्लस I का कोई कंक्लूजन नहीं होता। और A प्लस I का कोई कंक्लूजन नहीं होता। तो हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है कि नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने के लिए हमारे पास कंक्लूजन ये होना चाहिए कि जो हमारे कंक्लूजन्स जो क्वेश्चन में दिए हैं वो सम और सम नॉट के फॉर्म में होने चाहिए, जो कि नहीं है। और नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये इन दोनों का कंक्लूजन क्या आएगा? नो कंक्लूजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 2 फॉलोज, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे पेज पे ले चलते हैं, काम आएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या? सपोज क्वेश्चन है नो M is L, no M is L and S is M, ठीक है। स्टेटमेंट्स ये हैं। कंक्लूजन्स क्या क्या है? कंक्लूजन्स इस क्वेश्चन में दी हुई हैं क्या? S is not L, ये पहली कंक्लूजन है। दूसरी कंक्लूजन क्या है? ऑल M are not S,
तो क्या दिया है, S इज़ नॉट L एंड ऑल M आर नॉट S। ठीक है, तो पहले देख लें अलाइन है कि नहीं। पहली स्टेप अलाइनमेंट, अलाइनमेंट नहीं है क्योंकि पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट नहीं है। तो पहली स्टेप रीअरेंजमेंट से देखें होता है कि नहीं। रीअरेंजमेंट कर लें तो S इज़ M ऊपर आ जाएगा और नो M इज़ L। अब ये अलाइन हो गए, तो दूसरी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। थर्ड स्टेप, ये सेकंड स्टेप ऑफ कंक्लूजन्स पे जाना है। तो कंक्लूजन्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए किस टाइप का सेंटेंस है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो A टाइप का है और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा किस टाइप का है, ये स्टेटमेंट 2 ये स्टेटमेंट 2 किस टाइप का है, स्टेटमेंट 2 ई टाइप का है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसे पेस्ट कर लेते हैं जो हमने कॉपी किए थे ताकि हमें आसानी रहे लगाने में आंसर। अब ए का ए के साथ होता है, ए का ई के साथ होता है तो क्या आता है, ए का ई के साथ ई ही आता है, ए का ई के साथ ई आता है तो ई बनेगा। ठीक है, तो M और M कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, S इज़ नॉट L। ठीक है, या नो S इज़ L भी लिख सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ओनली 1 फॉलोज है, ओनली 1 फॉलोज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये क्लियर है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसी तरीके के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। एक क्वेश्चन क्या है, जैसे सपोज ऑल B आर N, ठीक, एंड ऑल M आर F। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स हैं। अब कंक्लूजन क्या दी है, ऑल M आर B's, ये पहली कंक्लूजन। दूसरी कंक्लूजन ऑल B आर F। ठीक है, तो अब इतनी स्टेप्स बार नहीं करेंगे, अब बस एक साथ अप्लाई करते हैं। देखिए ये अलाइंड है ऑलरेडी। पहला वाला जो है वो सेंटेंस A टाइप का है, दूसरा भी A टाइप का है, तो इसका कंक्लूजन भी A टाइप का होगा। तो इसका मतलब ये कैंसिल, बचेगा क्या, ऑल B आर F। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसी तरीके से हमें